Shall move on to the next eminent guest faculty. We have Dr. Pradeep Sarkar. And to bring him on board to introduce him is none other than our Honorary Secretary, Dr. Aarti Gupta. So I request her to introduce the next speaker and take the session forward. Thank you, Aarti. Thank you, Dr. Shobha. Thank you, Neerja, for running this program in such a nice way. I should appreciate both of you and efforts of both of you. Thank you so much. And now I will like to introduce our next speaker, Dr. Pradeep Kumar Sarkar. I am so happy to have him here. He is such a learned person from PGIMR Chandigarh. He is BPT, MPT, MA, and PhD, and he had 29 years experience in women and child health, cardiopulmonary, ICU, physiotherapy, and community-based rehabilitations. Participated in community health services in Chandigarh, Punjab, Haryana, and West Bengal, and arranged community-based rehabilitation programs and disability prevention activity. He is examiner in so many universities, and he had done TV and radio talk shows, and he had 15 publications, 15 papers in national and international journals, chapters in 8 books, published a book on maternity health in 3 languages, Hindi, English, and Punjabi. Sir, I will like to have this book. And he had got I'll share. award from Hindi Sahityakar Award, Senior Member Award in National Physiotherapy Conference in 2017, and CP Nair Award, and so many awards. Thank you, sir. I will be happy. The topic is very good. He is decoding physiotherapy gadgets and equipments for non-physiotherapists. This is really a very good topic. Please, sir, now you continue. Good morning, all. Thank you for calling me in this program. First of all, I want to say, actually, the previous talk was so mesmerizing. I was amazed to listen all these things regarding womanhood, women's empowerment, and other so many relations in our religious aspects. So it was really fantastic. At the same time, we need to make ourselves fit, and especially women need to be fit themselves to carry out so many activities, so many social, family, and other works. Now we are intermingled in everywhere. So we need to, women need to be fit, keep themselves fit for their activities. So actually, मेरा जो मैडम का जो इंस्ट्रक्शन था इंडियन लैंग्वेज में बोलना है, that is English and Hindi. Yes. And We are that very will, happy to have you so speak in Hindi. that will be better for everyone. I will share the talk. So I'll do here power presentation, and you can understand the same time. Now the physiotherapy gadget and equipments, as madam herself given this concept to say in this way. So I have written exactly in the same way. इसमें आप देखेंगे तो फर्स्ट स्लाइड में मैं एक हाईटेक गैजेट रखा है जो हमारे डिपार्टमेंट में भी है, सेम मशीन. इट इज ए ग्रुप ऑफ 8 मशीन जिसमें पूरा बॉडी का एक्सरसाइज कर सकते. एक गैजेट हमें बहुत हेल्प करता है फिटनेस मेंटेन करने के लिए, और साथ में इलेक्ट्रोथेरेपी गैजेट, इलेक्ट्रोथेरेपी इक्विपमेंट्स जो हमारे डिपार्टमेंट में है, ये फिजियोथेरेपी प्रोफेशन के लिए यूज होता है एवरीडे फिटनेस मेंटेन करने के लिए, पेन रिलीफ के लिए, और साथ में जो भी कॉम्प्लिकेशंस है इसके लिए. मैं एक चीज पहले बताना चाहूँगा. जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाके क्या ट्रीटमेंट होता है, हमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है. सबको लगता है कुछ मशीन का थ्रू सिकाई किया जाता है, मसाज किया जाता है और कुछ एक्सरसाइज बताया जाता है. तो एक इसमें पहले ही एक बोलना चाहता हूँ, जैसे एक्सरसाइज, नथिंग इज बेटर देन एक्सरसाइज. इसीलिए नाउअडेज
एक्सरसाइज रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है उसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इलेक्ट्रोथेरेपी बाकी गैजेट्स जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ में एक्सरसाइज करना जरूरी है। जैसे हम कॉमनली फिजियोथेरेपी में जाएंगे तो सबका ये होता है, जो फिजियोथेरेपी में कौन सा मशीन का सिखाई दिया जाता है। जैसे सबसे पहले ये आता है शॉर्ट वेव डायथार्मी, डायथार्मी दिया गया है, अल्ट्रासाउंड थेरेपी किया गया है, एकदम बेसिक मशीन से। साथ में काफ़ी हाईटेक इक्विपमेंट से जो फिजिकल फिटनेस मेंटेन के लिए चाहिए, वो वुमेन्स के लिए भी चाहिए, मेंस के लिए भी चाहिए, और स्पेशली स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जो अभी है उसमें काफ़ी हाईटेक इक्विपमेंट्स है। तो उसमें कुछ हमारा डिपार्टमेंट में हम भी इनकॉर्पोरेट किया है। एकदम फर्स्ट स्लाइड में जो है ये मल्टीपर्पज एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स मल्टीपल मशीन से हम सेट किया है ये। तो इसके साथ रिलेट करके मैं बाकी बताऊंगा। और एकदम लास्ट में मैं एक चीज़, जैसे ये वुमेन्स हेल्थ के लिए है, तो 2-4 स्लाइड्स में बताना चाहूँगा, अगर टाइम अलाउ होगा तो। उसमें वुमेन्स हेल्थ का मेरा पीएचडी बेसिकली मेटर्निटी फिटनेस के ऊपर है, तो उसमें ये जैसे मेनोपॉज सोसाइटी का है, तो आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। फ्यूचर में अगर मौका मिलता है तो उसके ऊपर मैं पूरा प्रोग्राम बताना चाहूँगा। नेक्स्ट में ये देखिए जो इक्विपमेंट्स कॉमनली यूज होता है, एक स्लाइड में मैं देने का कोशिश किया है। इसमें फास्ट में देखेंगे एक बॉल के ऊपर वुमेन एक्सरसाइज कर रहा है और बच्चा साथ में है। एक पेशेंट थी जो मेरा पीएचडी का सब्जेक्ट थी, और वो अ, अपना स्पाइनल सर्जरी हुआ था, उसके बाद ये सेकंड बेबी है, और उनको मैं ऐसे एक्सरसाइज बॉल के ऊपर एक्सरसाइज कर रहा है। आप देखिए अकेले ही कर रहे हैं, अकेले कर रही है, ये देखने से लगता है तो गिर जाएगी, लेकिन अगर प्रॉपर ट्रेन किया जाता है तो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल एक्सरसाइज, और बहुत आसानी से किया जाता है, और ये अपना फिटनेस मेंटेन के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है देखिए, ये पेल्विक फ्लोर थेरेपी का हमारा एक सिस्टम है, डिपार्टमेंट में है, मैं इसके लिए काम करता हूँ। जैसे यूरिन लीकेज के लिए यूज होता है, वो साथ में और भी काफ़ी कुछ है। एक कंप्लीट जिम है, जिम्नाशियम का पिक्चर दिया गया है। साथ में ये अल्ट्रासाउंड थेरेपी है, स्टिमुलेटर है, शॉर्ट वेव डायथर्मी, quadriceps एक्सरसाइज, माइक्रो डायथर्मी, ऑल दिस इक्विपमेंट्स आते हैं। मैं एक एक करके बताऊंगा जितना हो सके पॉसिबल। तो ये फिजियोथेरेपी में जो इक्विपमेंट्स यूज होता है, मैं इसमें 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। जिसमें फर्स्ट होता है थेराप्यूटिक इक्विपमेंट। थेराप्यूटिक इक्विपमेंट का मतलब ये है इलेक्ट्रोथेरेपी का इक्विपमेंट, जो हमें रेगुलर बेसिस पे जरूरत होता है। लॉट ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग जिनके लिए ये जरूरत पड़ता है, और हमें रोज इसको प्रिस्क्राइब करते। दूसरा डिपार्टमेंट से जैसे एडवाइस होकर आता है हमारा डिपार्टमेंट, तो इसमें इनकॉर्पोरेट करके हमारे हिसाब से मॉडिफाई करके फिर देते हैं। जैसे शॉर्ट वेव डायथर्मी, माइक्रो डायथर्मी, लॉन्ग वेव डायथर्मी भी है, अल्ट्रासाउंड थेरेपी है, स्टिमुलेटर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलेटर है, लेजर है, यूबीआर है, ईएमजी, बायोफीडबैक एक्सेट्रा। नेक्स्ट ग्रुप होता है एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स ग्रुप। एक्सरसाइज मशीन्स है, डायरेक्टली एक्सरसाइज मशीन्स है। एक्सरसाइज बॉल है, जैसे पहले देखा, थेराबैंड है, ट्रेडमिल है, बाइसाइकिल आर्गोमेट्री है, क्वाड्रिसेप्स टेबल है, ये काफ़ी और भी काफ़ी हाईटेक इक्विपमेंट्स है। और एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज, जो घर में भी यूज़ कर सकते हैं, हम डिपार्टमेंट में भी यूज़ करते हैं। और इसका ज़रूरत काफ़ी है क्योंकि ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, और घर में बैठे घर में भी यूज़ कर सकते हैं, बाहर में भी कर सकते हैं। जैसे आइस पैक होता है, हॉट पैक्स होता है, सनलाइट को भी यूज़ करते हैं हम, कंट्रास्ट बाद, ड्राई हीट, पैराफिन वर्क्स बाद, एटसेट्रा। ये है एकदम फास्ट में जो दिखाया जाता है, ये शॉर्ट वेव डायथर्मी है। शॉर्ट वेव डायथर्मी मोस्ट कॉमनली यूज्ड इक्विपमेंट से डिपार्टमेंट में। एवरी डिपार्टमेंट जहाँ पे भी फिजियोथेरेपी का कोई जो क्लिनिक होगा, प्राइवेट गवर्नमेंट का होगा, तो ये मशीन तो होना ही चाहिए। जैसे क्रॉनिक पेन के लिए, बड़ा एरिया में पेन है और काफ़ी पुराना दिन से चल रहा है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस से, लो बैक पेन होता है, इनके लिए यूज़ कर सकते हैं हम। और ये काफ़ी रिलीफ देता है, डीप पेनिट्रेटिंग होता है, मतलब काफ़ी जो इनर स्ट्रक्चर है, जहाँ पे इनर एरिया में पेन है, वहाँ पे भी ये पहुँच जाता है, ये रेज ऐसा है। तो इसको हम कॉमनली यूज़ कर लेते, सबके लिए यूज़ कर लेते, लेकिन इसमें कुछ प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी बहुत है, इसीलिए मैं हाईलाइट किया है प्रिकॉशंस क्या है। कभी ऐसा होता है जैसे दूसरा डिपार्टमेंट से पेशेंट रेफर किया, लेकिन उसका कैंसर है, ये अंदर कोई मेटल इम्प्लांट्स है, उसको ये इक्विपमेंट्स का ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि वो मेटल अगर है तो मेटल गर्म हो जाएगा, बार्न हो जाएगा अंदर से, दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। कैंसर है तो फैल जाएगा, तो इसे हम यूज़ नहीं करते हैं। इन्फेक्शन, एक्टिव इन्फेक्शन है
तो नहीं दे सकते। तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब कोई भी अगर इसमें है तो आप लोग का भी ये रिक्वेस्ट करूंगी, ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ये कंट्रोल करके देना ठीक रहता है पेशेंट का सेफ्टी के लिए। और इसके लिए कॉटन ड्रेस होना चाहिए, और जैसे जो भी ड्रेस उसमें सिल्क नहीं होना चाहिए, कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिव जो मटेरियल्स होता है इसे कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसके हिसाब से स्किन सेंसेशन ठीक है कि नहीं ये चेक करके हम देते हैं। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड थेरेपी। ये बेसिकली लोकलाइज पेन के लिए, और थोड़ा क्रॉनिक पेन है, स्पोर्ट्स इंजुरी है, थोड़ा सा फाइब्रोसिस हो गया, टाइटनेस आया है, तो उसको रिलीज के लिए अल्ट्रासाउंड थेरेपी देते हैं। ये कॉमनली यूज, बहुत ही कॉमनली यूज्ड इक्विपमेंट्स है जो एवरी क्लिनिक्स में एक होता है। तो मैंने जैसे लिखा है लोकलाइज पेन, टेंडन पॉइंट है, टाइटनेस है, स्पोर्ट्स इंजुरी के बाद पोस्ट स्पोर्ट्स इंजुरी कंडीशन में हम यूज करते हैं। लेकिन अगर कैंसर है, सीए है, तो बिल्कुल ही नहीं देना है, तो क्योंकि वो स्प्रेड हो जाएगा, मेटास्टेसिस होने का चांसेस काफी रहते हैं। मिडल अगर है तो अभी नहीं दे सकते, ओपन वुंड है तो नहीं दे सकते। लेकिन ओपन वुंड में हम कुछ कंडीशन है जो मैनेज करके दे सकते हैं, जैसे कोई ग्लाव्स में पानी भर के उसके ऊपर रख के उसके ऊपर से दे सकते। तो थोड़ा सा कम्बरसम है, इजीली हम यूज नहीं करते इसे। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलेटर। स्टिमुलेटर काफी है, जैसे फेराडिक है, गैल्वानिक है, टीएनस है, रशियन करंट है, आईएफटी है। तो ये हम किसके लिए क्या जरूरत है थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से देते। तो यूजुअली क्या यूज इसमें इसका क्या है, जैसे मसल का पावर बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए देते हैं। मसल री एजुकेशन, जैसे कोई इंजुरी के बाद कमजोर हो गया उसको री एजुकेशन के लिए देते हैं। नर्व इंजुरी के बाद और रिविजेशन के लिए देते हैं। पेन रिलीफ के लिए देते हैं। स्पोर्ट्स इंजुरी ट्रॉमा के बाद भी हम यूज करते हैं। प्रिकॉशंस जरूर सेम लेना है, स्किन सेंसिटिविटी चेक करना, ओपन वुंड है कि नहीं, मेटल है कि नहीं, कैंसर है कि नहीं, ये भी चेक करके हम देना होता है। नेक्स्ट है माइक्रोवेव डायाथर्मी। माइक्रोवेव डायाथर्मी भी कॉमनली यूज होता है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली इक्विपमेंट्स है, इसीलिए कोई भी छोटा जैसे क्लिनिक्स होता है तो नहीं होता है यूजुअली। पीजीआई जैसे हम इसको कर लेते हैं, जैसे क्योंकि एक एक इक्विपमेंट्स का दाम 15 to 20 लाख से, तो मैनेज करना मुश्किल होता है। ये भी जैसे पेन रिलीफ के लिए यूज होता है, मसल स्पैज्म, क्रॉनिक एक्यूट कंडीशन दोनों में यूज कर सकते हैं हम। उसमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके तभी देना होता है। इसमें कंपैरेटिवली लेस साइड इफेक्ट, स्टिल अगर कैंसर है, एक्टिव इन्फेक्शन है, तो हम उसमें कोशिश करते नहीं देना। और इसके साथ आप कॉम्बाइंड ट्रैक्शन दे सकते हैं, जैसे नीचे कॉम्बो मशीन है, नीचे दिखाई जा रहा है जो है, ये कॉम्बो मशीन है, हमारा डिपार्टमेंट में दोनों ही है। तो कॉम्बो मशीन में दोनों ट्रीटमेंट एक ही साथ देने से ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, हमारा टाइम भी उसमें बच जाता है। नेक्स्ट है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से लेजर है। लेजर के लिए देखिए जो अप्लाई कर रहे हैं उसके आईज में भी गॉगल्स होता है, स्पेशल गॉगल्स होता है, क्योंकि ये आई डैमेज होने का, आई लेंस डैमेज होने का चांसेस काफी है। तो इसलिए कवर करना जरूरी है, पेशेंट का भी और जो थेरापी दे रहा है उसके लिए भी। इसमें हम क्रॉनिक पेन के लिए यूज करते हैं, टाइटनेस फाइब्रोसिस रिलीज करने के लिए, वुंड हीलिंग के लिए यूज होता है। दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव डिफरेंट टाइम से इसीलिए। और ब्यूटी इंडस्ट्री में ये काफी यूज होता है, वुमेन्स हेल्थ के लिए स्पेशली जो सीजरियन डिलीवरी होता है, और एपिसियोटोमी होता है। उसमें मैडम आपको पता होगा, निर्जा मैडम आप जैसे जानते गायनोकोलॉजिस्ट है, तो आपकी एपिसियोटोमी ड्यूरिंग डिलीवरी जो किया जाए तो उसके जो वुंड है ये काफी इफेक्टिव है। वन इज लेजर, अनदर इज यूवीआर, दोनों ही काफी इफेक्टिव है, जल्दी हीलिंग हो जाता है। प्रिकॉशंस में हम यही बोलते हैं आई और ईयर को ख्याल रखना है, स्क्रोटम फॉर मेल पेशेंट एंड सी अगर है तो बेटर नॉट टू यूज। नेक्स्ट ही सेम ऑलमोस्ट यूवीआर, ये भी वुंड हीलिंग के लिए काफी अच्छा इक्विपमेंट्स है। बाकी पेन रिलीफ के लिए भी यूज होता है, और कई स्किन कंडीशन के लिए यूज होता है। स्किन में डिफरेंट टाइप्स प्रॉब्लम्स जैसे है, और काफी डार्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में ये यूविया रूम क्रिएट किया जाता है जो होल बॉडी ट्रीटमेंट के लिए, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के ट्रीटमेंट के लिए। तो यूविया रूम क्रिएट किए करके उसमें किया जाता है ट्रीटमेंट। जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए यूज होता है। इवन हमारा जैसे कोई सर्जरी से पहले
डिपार्टमेंट में हमारे जैसे नी या कोई एरिया के लिए सर्जरी होगा, नी रिप्लेसमेंट होगा, तो बोलते पहले फिजियोथेरेपी में जाके 3-4 सिटिंग ये ले लो, तो स्किन के ऊपर कोई सुपरफिशियल इन्फेक्शन थोड़ी बहुत है तो वो किल हो जाएगा, जाम किल हो जाएगा। तो इसीलिए प्री ऑपरेटिव भी यूज होता है, पोस्ट ऑपरेटिव भी यूज होता है वुंड हीलिंग के लिए, उस टाइम अगर कोई वुंड है तो। इन्फेक्शन कंट्रोल, वुंड हीलिंग, स्किन कंडीशंस लाइक सोरियासिस, विटिलिगो, एक्जिमा और फोटोथेरेपी केबिन जैसे पहले मैं बताया है। और पीरियोपरेटिव स्किन स्टेरिलाइजेशन ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। साइड इफेक्ट्स ऑफकोर्स इसमें जैसे स्किन बर्न होने का चांस होता है और फोटो एलर्जी होने का चांसेस है। C1 अगर है तो विथ केयर देना है, आइडेंटिफाई करके नहीं देना, ठीक है। नेक्स्ट अनदर इक्विपमेंट्स ए क्रायोथर्मोथेरापी। ये इक्विपमेंट्स है जो गर्म भी जल्दी होता है, जो हेड आपको देख रहा है सामने बड़ा वाला, ये क्विकली इसको हीट अप हो जाता है या जल्दी कूल भी हो जाता है। तो हम उसको टाइम सेट करके, जैसे कंट्रास्ट बात हम यूज करते हैं, ठंडा पानी गर्म पानी पास पास रख के, उसके हिसाब से ये यूज कर सकते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, जैसे 1 मिनट हम ये कोल्ड ट्रीटमेंट किया है, फॉलोड बाय 4 मिनट्स हम हॉट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इससे हम ऑल्टरनेट करके टाइम सेट करके हम दे सकते हैं। तो कॉस्टली मशीन है ऑफकोर्स, ऑलमोस्ट एक मशीन 20 लाख का है, लेकिन काफ़ी इफेक्टिव है और स्पोर्ट्स ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। नाउ सिंपल ट्रीटमेंट जो हम इजीली दे सकते, घर बैठ के भी कर सकते, आइस पैक एंड हॉट पैक। और इसका साइड इफेक्ट नहीं है, घर में बैठ के दे सकते हैं। और एक कॉमन कॉन्सेप्ट मैं सबके लिए बताता हूँ, घर में भी अगर किसी का थोड़ा चोट लग गया है तो डोंट गो फॉर हॉट ट्रीटमेंट। ट्रॉमा हुआ है, इंजुरी हुआ है, इमीडिएटली कभी हॉट ट्रीटमेंट मत दीजिए, आइस पैक यूज कीजिए। और अगर क्रॉनिक पेन है तो हॉट पैक यूज कीजिए। ये थोड़ा सा डिमार्केशन कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई कई पेशेंट होता है जिसे चोट लगा साथ साथ हॉट पैक्स लगा लिए, उसमें और बढ़ जाता है, कम होने की जगह में बढ़ जाता है। एक एग्जांपल मैं दूंगा, डॉक्टर के मुखर्जी, ही इज नो मोर। तो उन्होंने ऐसे एक बार मुझे बुलाया मॉर्निंग में, बोले प्रदीप देखना मेरा टांग में इंजुरी हुआ है, उनका एंकल फ्रैक्चर हो गया था। और मैं बोला सर आप हॉट तो नहीं लगा? बोले देख मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरे माइंड में आया नहीं। मैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में वॉशरूम गया, उसमें चोट लगा, मैं आके हॉट पैक्स लगा लिया। अरे देख कितना स्वेलिंग हो गया है। तो मैं बोला मत दीजिए, आइस पैक लगा लीजिए। तो ऐसा हो जाता है, गलती हो जाता है। तो जब भी चोट होगा कोई भी तो आइस लगाइए, क्रॉनिक पेन होगा हॉट पैक्स लगाइए, नो साइड इफेक्ट। नेक्स्ट, हम सनलाइट को ऐसे यूज कर सकते हैं। हम ओपन, अभी विंटर है, हम धूप में बैठ जाएंगे, विटामिन डी तो मिलेगा ही। बॉडी सबसे बड़ा इसमें फायदा जो मैं पर्सनली भी देखा है, सन एक्सपोजर में डिप्रेशन दूर हो जाता है। तो ये सबके लिए बहुत ही अच्छा है, नेचुरल ट्रीटमेंट है, पैसा खर्चा नहीं है, नो साइड इफेक्ट। एक थोड़ा सा चेस्ट फिजियोथेरेपी का थोड़ा सा मैं बताया इधर। चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए कुछ इक्विपमेंट्स है, जैसे चेस्ट वाइब्रेटर है, ये हम डिपार्टमेंट में भी है, हम यूज कर सकते हैं। अनदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ये लेफ्ट साइड बिलो में रखा मैं, सक्शन के लिए चेस्ट फिजियोथेरेपी। ये इंटेंसिव केयर यूनिट में, कोई भी क्रिटिकल केयर एरिया में चेस्ट फिजियोथेरेपी करके उसके बाद सक्शन करना होता है। तो ये सबके लिए जरूरत नहीं है, लेकिन व्हेनेवर पेशेंट इज इन द आईसीयू एरिया तो ये सक्शन इक्विपमेंट्स यूज होता है। और वो बहुत टेक्निकल जॉब है, बहुत संभल के करना होता है। इट इज नॉट फॉर ऑल, लेकिन जस्ट मैं एक स्लाइड दिया ताकि पता होता है चेस्ट फिजियोथेरेपी क्या है और सक्शन का क्या जरूरत है। तो बहुत ही इफेक्टिव और बहुत लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स है। नेक्स्ट मैं एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स बताऊंगा, जैसे क्वाड्रिसेप्स टेबल है, ये जैसे नी सर्जरी और इवन नी सर्जरी नहीं हुआ है, क्रॉनिक पेन, उनके लिए भी ये क्वाड्रिसेप्स टेबल यूज होता है। जैसे OA पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन, स्पोर्ट्स इंजुरी, स्ट्रेंथनिंग के लिए, मोबिलिटी के लिए यूज होता है। नेक्स्ट ट्रैक्शन, जैसे स्पैज्म रिलीज के लिए, पेन कम करने के लिए, मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, डिकम्प्रेशन के लिए यूज होता है। लंबा ट्रैक्शन, सर्वाइकल ट्रैक्शन, बहुत ही कॉमनली यूज ट्रैक्शन सिस्टम है ये। एवरी डिपार्टमेंट शुड हैव दिस मशीन, होता भी है।
ये बाइसाइकिल आर्गोमेट्री ये ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है, स्ट्रेन देने के लिए, स्पोर्ट्स इंजरी के लिए यूज होता है, साथ में बाकी जैसे किसी का फिटनेस, जनरल फिटनेस बढ़ाने तब भी यूज होता है। नेक्स्ट है गेट एनालाइजर डिपार्टमेंट में हमारा है, बहुत ही कॉस्टली मशीन है, मोर देन 2 करोड़ कॉस्ट होता है, लेकिन ये बहुत रिसर्च ओरिएंटेड इक्विपमेंट्स है। पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे डायग्नोसिस होता है, उसके हिसाब से क्या क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए वो हम डिसाइड करते हैं। सो मेडिकल टाइम कम है, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं जाना चाहता हूँ। दिस इज VO2max एनालाइजर, ये भी हाईटेक इक्विपमेंट है। जैसे हमारा स्पोर्ट्स इंजरी में यूज होता है, कोई सर्जरी CABG वगैरह हुआ है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, और भी कोई कार्डियोपल्मोनरी सर्जरी हुआ उसमें, उसके बाद उसका फिटनेस इंप्रूव के लिए, जैसे डायग्नोस्टिक पर्पस और ट्रेनिंग दोनों के लिए यूज होता है। ये पहले जो फर्स्ट स्लाइड में जो था उसका कॉम्बो मशीन है, 8 मशीन का सेट होता है डिपार्टमेंट में हमारा है ये। और इसके होल बॉडी एक्सरसाइजर है, इसमें हम डायग्नोसिस भी करते हैं और ये इक्विपमेंट्स बता देते हैं क्या एक्सरसाइज करना है। एक बार इसका डिटेल्स डालना होता है, पेशेंट का चेक करना होता है, उसके बाद इक्विपमेंट्स बता देते हैं क्या एक्सरसाइज फ्यूचर के लिए करना है और कैसे करना है, सब कुछ बता देते हैं। हाईटेक इक्विपमेंट्स है ये भी। नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए और उससे कॉम्प्लिकेशंस के लिए मैं थोड़ी बहुत बता रहा हूँ इधर, ये बहुत ही जरूरी है, वुमेन्स हेल्थ का आपके सोसाइटी है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे क्या क्या प्रॉब्लम होता है, एब्डोमिनल मसल्स में क्या प्रॉब्लम होता है, जैसे ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस, डायसिस रेक्टाई, ब्लडर प्रॉब्लम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब बहुत ही वुमेन्स का होता है, स्ट्रेस और आर्ज इनकॉन्टिनेंस का जो प्रॉब्लम है, और पेन तो होता ही है, कार्पल टनल सिंड्रोम, ऐसे ऐसे काफी कुछ प्रॉब्लम है। और साथ में प्रोलैप्स यूटेरस, और इसकी जो ट्रीटमेंट है ये हम करते हैं अभी डिपार्टमेंट में, एज मेरा PhD मैटरनिटी फिटनेस के ग्रुप पे। उसके बाद काफी पेशेंट डिपार्टमेंट में आते हैं, आप ये देख सकते हो। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो सबको लगता है ये ठीक करना जरूरी है। SI जॉइंट पेन, सिम्पाइसिस, pubic पेन, ओवर ओबेसिटी, ऑल दिस थिंग्स पर्सनल प्रॉब्लम है ये। तो साथ में जो पहले मैं बोल रहा था मैडम, जैसे एपिसियोटोमी और इसके जो वुंड है, इसके फाइब्रोसिस हो जाता है, इसका ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी में होता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसमें आता है। नेक्स्ट, ये मेरा डिपार्टमेंट में है, इसमें जैसे यूरिनरी लीकेज और प्रोलैप्स यूटेरस, Hello, हाइपर एक्टिव ब्लडर, good morning. इसके लिए काफ़ी कुछ होता है, काफ़ी ट्रीटमेंट अवेलेबल है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। थोड़ा सा हाईटेक इक्विपमेंट्स है लेकिन हम अभी यूज़ कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, मेरे रूम में है, मैडम शायद आपने देखा है, आप ट्रीटमेंट के लिए आते थे, तो ये काफ़ी इफेक्टिव है, वुमेन्स हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरत है। नेक्स्ट है अनदर, एक इसी मशीन के साथ इनकॉर्पोरेट किया एक मिनी मशीन इक्विपमेंट्स भी है जी। ये इंटरनल इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड देखेंगे ये सिलिंड्रिकल, एक तो सिलिंड्रिकल होता है और एक कॉनिकल होता है, हम यूज कर सकते हैं। ये दोनों एरिया के लिए यूज होता है, एनल एंड वेजिनल दोनों के लिए यूज होता है, और डायरेक्ट पेल्विक फ्लोर स्टिमुलेशन होता है जो काफी रिजल्ट काफी अच्छा है इसका। और एक साथ में ये प्रेशर मैनोमीटर है, इस डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट दोनों के लिए यूज होता है। आप देखेंगे इसमें एक जो ये प्रॉब है, इसमें कंडोम से कवर करके इंटरनल हम डाल के प्रेशर मेजर करते हैं, और दूसरा होता है इसमें हाईलाइट हो जाता है कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, पता चल जाता है। तो उसको हम जैसे ट्रीटमेंट के बाद चेक करने के लिए यूज करते हैं, प्लस ट्रेनिंग के लिए भी यूज होता है, बायो फीडबैक भी यूज होता है, एज ए बायो फीडबैक प्लस मेजरिंग के लिए भी यूज होता है। दैट इज वेरी गुड इक्विपमेंट्स। और एक इक्विपमेंट्स है डिपार्टमेंट में हमारा है, ये डीप ऑसिलेशन कहते हैं। ये जो आप डायस्टेसिस रेक्टाई होता है जो प्रेगनेंसी मार्च से ये काफी रिड्यूस होता है। मैं 2-3 पेशेंट को कुछ दिन में यूज किया है, तो ये काफी पोस्ट प्रेगनेंसी जो मार्क, एब्डोमिनल मार्क से ये काफी कम हो जाता है, स्मूथ हो जाए स्किन, और जो उसमें इंटरनल पेन है, थोड़ा सा डीप सीटेड पेन है, ये भी कम हो जाता है। अनदर इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स ये जो यूज होता है वो जैसे ब्रेस्ट मिल्क एनगॉर्ग हो जाता है, पेनफुल होता है, ये यूज करने से रिलीज होता है, अंदर जो फाइब्रोसिस है वो रिलीज हो जाता है। लिम्फ ड्रेनेज के लिए तो यूज होता है कई भी जगह के लिए। थैंक यू मैम,
Thank you for calling. If any question can raise, I don't know if there is time. If it is permit, then I'll answer. There is one raised hand, Hmm. and there is one question from the audience. Hmm. What is your opinion, आपका opinion on acupuncture? मैडम अकुपंक्चर अभी जो यूज होता है ड्राई नीडलिंग का हिसाब से अभी करते हैं। तो ड्राई नीडलिंग थोड़ा सा इन्वेसिव होता है और कोई मैं ये बात यहाँ पे इसलिए नहीं किया है, गैजेट एग्जैक्टली गैजेट के अंदर नहीं आता इसलिए मेंशन नहीं किया, लेकिन इट इज यूज्ड ड्राई नीडलिंग एज ए ड्राई नीडलिंग ट्रीटमेंट के लिए अभी यूज होता है। आप अभी जैसे इसके साथ और भी एक दो चीज बताऊंगा मैं, जैसे ड्राई नीडलिंग, कापिंग थेरापी और भी काफी कुछ ऐसे इसके साथ है जो अभी यूज होता है। टेपिंग भी यूज होता है अभी। तो ये भी एग्जैक्टली फिजियोथेरेपी कोई कोई बोलते हैं तो फिजियोथेरेपी नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया, लेकिन वो भी एडजंक्ट टू फिजियोथेरेपी यू कैन से। तो ये भी अभी यूज होता है, इसका इफेक्ट भी है, लेकिन कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स लाइक नहीं करते हैं, मतलब ये ठीक नहीं क्योंकि आप पंक्चर कर रहे हैं, थोड़ा सा इन्वेसिव है, तो इट मे नॉट बी गुड फॉर द पेशेंट, इन्फेक्शन Can हो we सकता है। have अभी a तक इससे कोई can, प्रूफ नहीं है। Can you please just stop the remove screen your share? Yeah. हाँ, Thank you. So yeah, thank you. And Abhi, quick one line answers. हमारी ओल्ड इंडियन ट्रेडिशन ये है कि आप ठंडे पानी से नहाओ फिर गर्म से नहाओ, साधु संत ऐसे ही करते थे। तो आपके पास इसका क्रायोथर्मोथेरेपी है और कंट्रास्ट थेरेपी है, इसके साथ गर्म सर्द नहीं हो जाता? ना मैम, जैसे ये साइंटिफिकली प्रूफ है ऐसा नहीं होता है। नहाने के लिए तो थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए, दैट इज ए डिफरेंट इशू। गर्म पानी ठीक रहता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है इसमें क्या होता है, मैं एक चीज बताता हूँ मैं। अगर कोई थोड़ी सी सोइलिंग है, मतलब अंदर पीढ़ी में एक्स्ट्रा फ्लूइड से, तो ये कॉन्ट्रास्ट बात जो है, ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन, ये दो चीज होता है। ये जो लुइस हंटिंग रिएक्शन, इसकी वजह से क्या होता है, वहां पे जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है ये निकल जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा और न्यू फ्रेश ब्लड आ जाएगा वहां पे। तो न्यू फ्रेश ब्लड आने से क्या होगा, हीलिंग जल्दी हो जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। इसलिए तो टर्किश बाथ्स में हाँ। स्टीम के बाद आपको डिप करना होता है इन आइस कोल्ड वाटर, देन गो हम्म, बैक टू स्टीम। सो हम्म, दैट इज वन। एक है आपके पास जो गैल्वेनिक है, हाँ, आपने ये बताया कि बहुत सारी चीजों के कैंसर के होते हुए नहीं हम्म, यूज हम्म, करते, हम्म, बट ऐसा है कि गैल्वेनिक यूज करने से कैंसर हो जाता है अगर आप टाइम ड्यूरेशन एक्सीड कर दो? ना ना मैडम, ऐसे नहीं होता है, वहां पे बार्न होने का चांस रहता है। अगर अंदर कैंसर है, कैंसर सेल है, तो उसको उसको स्टिमुलेट करता है, तो अच्छा, वो आप मल्टीप्लिकेशन हो सकता है सेल, जो बट ठीक कैंसर नहीं। कॉज नहीं नहीं करता? नहीं, कॉज नहीं करता है, कॉज नहीं करता है, अच्छा। कॉज नहीं करता है। इंफ्रारेड लैंप्स हम्म, जो हम लोग घर पे कई बार लेते हैं, इज दैट हम्म। अ गुड थिंग टू बाय? हाँ हाँ मैडम, ये जैसे सुपरफिशियल जो स्पैजम है, डीप स्पैजम पेन ठीक नहीं होगा, लेकिन सुपरफिशियल स्पैजम ठीक हो जाएगा मैडम। और इसके लिए एक लो कॉस्ट है, मेरे ख्याल 2-3 हज़ार में मिल जाता है लैम्प, हाँ, और वो आप यूज कर सकते हैं घर पे। लेकिन वो ख्याल रखना है, थोड़ा सा आईज के ऊपर नहीं आना चाहिए, इतना लेजर जैसे खराब नहीं है, फिर भी आई को आप मतलब प्रोटेक्शन दे के आप करवाइए। और आपका जो यूवी रेडिएशन हाँ है, हाँ 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 आपने एक बताया, हाँ हाँ। तो हम लोग तो बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में स्किन मेलानोमास बहुत कॉमन है, हम्म। तो यूवी रूम में ट्रीटमेंट लेने से कैंसर्स हो सकते हैं? अगर कैंसर है मैडम, ये और स्किन किसी के मेलानोमा। स्किन में हाँ, ये चांसेस उस वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है मैडम। उसमें अगर किसी का है तो हो जाएगा, चांसेस है। और जिसका स्किन में ये मेलानिन का जो प्रॉब्लम है, जैसे व्हाइट स्किन पीपल के लिए सान बाद भी थोड़ा खतरा होता है, लेकिन वो लोग लेते रहते हैं, आपको पता है, हाँ, लेकिन उनके लिए चांसेस है होने का। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल जो मैडम ट्रीटमेंट हमारा रूम होता है, उसमें यूवी ABC, ये जो है इसमें से हम जो खतरा वाला है उसको निकाल के कंट्रोल मैनर में उसको किया जाता है, जो ट्रीटमेंट रेंज है
ट्रीटमेंट रेंज को लिया के। और सन एक्सपोजर का आपने टाइमिंग और ड्यूरेशन थोड़ा सा बता दें। मैडम ऐसे ऐसा इसका साइंटिफिक प्रूफ तो कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इसे बताते एटलीस्ट हाफ एन आवर आप सन में खड़ा रहेंगे तो ठीक है। लेकिन मैडम एक चीज होता है, जैसे हम गर्मी में 2 मिनट भी रुकना मुश्किल होता है, विंटर में हम 3-4 घंटा रुक जाता है। तो ऐसा ये मुझे पता नहीं है, मेरा आइडिया नहीं है इसमें एग्जैक्टली रिसर्च हुआ कि नहीं। और मैडम रिसर्च का देखिए, जो हुआ है इंडियन सिनारियो है और यूरोपियन सिनारियो, उनको तो धूप नहीं मिलती विंटर में 6 महीना, तो उनके लिए डिफरेंट है, हम लोग के लिए डिफरेंट है, जो समर एरिया है उनके लिए डिफरेंट है। सो लोग अपने मेनोपॉज सोसाइटीज में ये बोलते हैं कि आप लोग अपने जब ऑफिस में होते हो एंड यू आर हैविंग लंच, तो लंच टाइम पे अपना सन एक्सपोजर आप बाहर करो। हाँ जरूर जरूर मैडम, मैं भी तो बोलना चाह रहा था, ये तो उतना देर तो होना चाहिए। हाँ, और मैडम हाँ, ये टाइमिंग और एक चीज बोल रहा हूँ, जो टाइम है मॉर्निंग, जैसे अप टू 10 o'clock जो धूप है वो मोस्ट इफेक्टिव होता है साइंटिफिकली। अप टू 1 o'clock आप ले सकते हैं, उसके बाद वो रेज 11 से 1 वो हमको नहीं बोला करना जाता है चाहिए। सर का, हाँ डॉक्टर प्रदीप। हाँ, मॉर्निंग 11 में। से 1, हाँ, हाँ साढ़े हाँ 10 से 12:30 से 1:30 ऐसा करके। हाँ हाँ, The उसके बाद peak नहीं sun करना है, ठीक। timing, yeah, for our country, because या direct exposure या results in good vitamin D synthesis in the skin, ठीक है ना? या यस। But you were very illustrative, बहुत कुछ समझ में आया आज फिजियोथेरेपी के बारे में। पहले खाली अगर किसी को कोई प्रिस्क्राइब किया करते थे, लिया करते थे, आज थोड़ा हाँ ज्यादा समझ में आया, तो इट इज अगर वेरी आपको किसी नाइस। को होम जिम एडवाइस करना हो कि आप, हाँ, yes, तो that's the कौन सा question. इक्विपमेंट वो That ले। is the question. Yes, Neerja. देखिए एक्सरसाइज, मैं पहले बोलूंगा फर्स्ट, एक्सरसाइज नथिंग इज बेटर देन एक्सरसाइज। हम इलेक्ट्रोथेरेपी उसके साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो बेसिक मशीन यूज करना चाहिए, पेन थोड़ा कम हो जाएगा, एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज से बढ़ के कुछ नहीं होता है। आप काफी हम अभी पता है हमें, जैसे ऑस्ट्रेलिया मोस्ट एडवांस फिजियोथेरेपी ऑस्ट्रेलियन Mm, सोसाइटी में बोला mm, जाता है, और यूरोपियन कंट्री में, तो वो लोग इलेक्ट्रोथेरेपी को कम कर दिया है, mm. वो एक्सरसाइज थेरेपी इक्विपमेंट्स को ज्यादा कर रहा है। हाँ, अच्छा, तो वो जो साइड इफेक्ट अगर कुछ है इलेक्ट्रोथेरेपी में, हम्म। तो वो नहीं होगा। एक्सरसाइज में हम ध्यान दे रहे जाते हैं, नहीं, इसीलिए मैं एक्सरसाइज थोड़ा गैजेट क्वेश्चन को ज्यादा रिपीट कर। करूंगी जो नीरजा जी ने बोला, क्योंकि हमको आंसर नहीं मिला है। अगर हमको एक कोई इक्विपमेंट रखना है घर में जो हाँ हम रोज यूज करें ना, इट शुड नॉट बिकम अ डेकोरेशन आइटम, हर हाँ दिन उस पे सवार हो, उसको यूज करें, तो आप हाँ। क्या रेकमेंड करते हैं ओल्डर वुमेन के लिए, औरतों के लिए? या ऐसा घर में रखने के लिए तो यूवीआर है, हम्म यूवीआर, सॉरी सॉरी यूवीआर नहीं, इंफ्रा इंफ्रा हाँ, इंफ्रा आप दूसरा यूज कर बहुत सकते अच्छा है। पर हैं। हम लोगों ने अपने घर में हमारे पास दो चॉइसेस थी, ट्रेडमिल रखें हाँ कि स्टेशनरी साइकिल रखें। हाँ तो हमने डिसाइड किया आफ्टर अ लॉट ऑफ स्टडी कि हम लोग स्टेशनरी साइकिल साइकिल सेफर इसमें फॉर द नीज, और ट्रेडमिल में एक्चुअली नीज के ऊपर बहुत प्रेशर बहुत पड़ता है। प्रेशर आता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी घर में साइकिल है तो हाँ सेकंड मशीन टू बाय इज ट्रेडमिल। पर पहली मशीन मेरे ख्याल साइकिल साइकिल मैडम, स्टेशन। हाँ यस, स्टेशनरी साइकिल ठीक है, क्योंकि उसमें आपका नी के ऊपर जो जार्क्स ट्रेडमिल में आता है वो नहीं होगा, और अच्छा, ठीक, थोड़ा लेट स्टेज में साइकिल ठीक है मैडम। वेरी हाँ गुड, अगर थैंक वो यू फॉर दैट कर मैसेज। सकते हो तो ठीक है। Nirja, I think we are terribly out of time today and we are just getting blown away. I think it's time to आई conclude. थिंक वी Okay. हैव नो अदर Yeah, yeah. क्वेश्चंस। हाँ Because Dr. Aarti has already flown into the further part of her day, I think. सो व्हाई डोंट यू कंक्लूड शोभा। Yeah, thank you, Nirja. I think थैंक यू today was, प्रदीप। थैंक यू yeah, मैम, थैंक thank यू मैम। you, Dr. Sarkar. That was amazing insight into physiotherapy, establishing a unit for yourself. That's wonderful. So many new thoughts have come today. As I said, we understood it better. And no less was Dr. Nirja's contribution to today's discussions. And we thank all the audience for being interactive today, Revati Madam and all others who came and interacted.
Dr. Aarti, thank you so much for your presence. And we understand that it is quite taxing for you amidst your other responsibilities as secretary. And as we can see, you're very busy at home also today. So thank you so much for being there. Thank Thank you. you, Dr. Thank Sarkar, you so again. much. Yeah. Before Yeah. we all wind up, Yes. Dr. Rachna has one question, which we, Pradeep, how much time or sitting is required for pelvis stimulator? Half an hour. Okay. Half Okay. an hour. Thank you. And I That's didn't want to miss that question Yes, because yes. she took the trouble of asking. Yes. Yeah. Yeah. मैम इसके साथ एक चीज और बोलता हूँ, जो हाफ एन आवर ट्रीटमेंट है हाँ. ये कुछ तो वेरी करता है कंडीशन वाइज। हम उसमें अलग अलग प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम का हिसाब से कुछ टाइम ड्यूरेशन कर सकते, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा। तो अब जैसे हम रफली 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर ये टाइम है, थोड़ा सा इधर उधर करके और हो सकता है। Okay. Thank you. Thank you very much.